Lord, I believe. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Amen. I believe we have sang it with all our hearts. मुझे विश्वास है कि हमने पूरे हृदय से इस गीत को गाया है। Amen. Just take the faith and all things are possible. केवल विश्वास कीजिए और सारी बातें संभव है। Amen. Let's pray together. आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। Let's bow our hearts and our heads and ask the Lord to speak to our hearts tonight. आइए हम अपने हृदय और सिरों को झुकाकर परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे हृदय से फिर एक बार बात करे। Dear Heavenly kind Father, प्रिय दयालु हमारे स्वर्गीय पिता, we want to thank you this wonderful evening. आज की सुंदर शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We want to thank you, Lord, for your wonderful presence. आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Also, Lord, I want to thank you for every son and daughter of yours that is present here. आपके हर एक बेटे और बेटी जो यहाँ पर उपस्थित है उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। I pray, Father, that you will take over this service now. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज की सभा को आप अपने हाथों में लें। Lord, you speak to our hearts. और हमारे हृदय से बातें करें। Because you know our heart's desire this evening. क्योंकि आज की शाम हमारे हृदय की इच्छा को प्रभु आप जानते हैं। And I pray that you will bless your children. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को आप आशीष करेंगे। Meet every heart's desire. हर एक हृदय की इच्छा को आप पूरा करें। Touch every life. हर एक की जीवनों को आप छू लीजिए। And we thank you for doing so. और ऐसा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। For we pray in Jesus Christ's precious and lovely name. प्रेमी और बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। And while we stand, I would like you to turn with me to the book of First Epistle General of John. जैसे हम खड़े हैं मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल में पहले यूहन्ना की पहली पत्री को खोलेंगे। And we would like to read from chapter 1, verse 5, 6 and 7. इसका हम पहले अध्याय के 5, 6 और 7वें पद को हम पढ़ेंगे। This then is the message which we have heard of him and declared unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और इसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Amen. May the Lord bless the reading of his word. प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर वो आशीष दे। Thank you very much. You may please take your seats. आप स्थानों पर बैठ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। I would like to greet every one of you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। It's indeed
था and we grew up right there in Veer Sambhaji Nagar. और वीर संभाजी नगर में ही हमारी परवरिश पालन पोषण हुआ है। And as you all know, that Dad was a man of God before even I was born. और आप सभी जानते हैं कि मेरे जन्म से पहले ही मेरे जो पिताजी है वो परमेश्वर के जन थे। And I would like to thank God for my father and my mother. और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे माता और पिता के लिए, Because of their upbringing and their prayer and the way they led our lives, we are standing here today. हम यहाँ आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हमारी परवरिश की, हमारे पालन पोषण किया, हम यहाँ पर आज खड़े हैं उसकी बदौलत। We were brought up in the fear of God. प्रभु के भय में हमारा पालन पोषण हुआ है। And we had a small group. और हमारी छोटी झुंड थी। But till 1990, when the Lord began to deal with my heart, after that I had to go to Hyderabad. और 1990 तक छोटी झुंड थी, लेकिन उसके बाद जब प्रभु मेरे हृदय से काम करने लगा तो उसके बाद मुझे हैदराबाद जाना हुआ। The Lord began to deal with me 3 different times. और प्रभु ने मेरे साथ बात करना 3 अलग अलग बार उसने मेरे से हृदय से बातें की। Just to cut the long story short, और ताकि मैं उस लंबी कहानी को संक्षिप्त में बता सकूं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। 3rd time I agreed and we decided to go to Hyderabad. और तीसरी बार फिर मैंने मान लिया और हम हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो गए। I was not willing to go there because of the language problem. मैं वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि भाषा का समस्या थी। Because there people speak Telugu language. क्योंकि वहाँ पर लोग तेलुगु भाषा बात करते हैं। We were born and brought up here in Mumbai in Mulund. और हमारी परवरिश तो यहाँ मुंबई मुलुंड में हुई है। And I never knew one single word of my own mother tongue. और मेरी खुद की मातृभाषा का एक शब्द भी मैं नहीं जानता था। So my problem was what I would do if I go there without the language. और मेरी समस्या ये थी कि तेलुगु भाषा जाने बगैर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। We started a church there right in our home. और हमने वहाँ पर घर पर ही कलीसिया आरंभ की। And just you know week or two, 1 or 2 used to come. और एक सप्ताह 2 सप्ताह 1 या 2 लोग केवल आते थे। Because they used to hear the singing and hear our music. क्योंकि वो हमारा गीत और हमारे संगीत को सुनकर 1-2 जन आया करते थे। And then after 2 weeks they used to just stop coming. और उसके बाद 1-2 सप्ताह के बाद उन्होंने आना फिर से बंद कर दिया। And that was a great disappointment. की बात थी। And my argument was coming true. My argument was coming true. Becoming true. मेरा जो विचार था, विवाद था, वो अभी सच्चा साबित हो रहा था। My problem was language. मेरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो तो भाषा की थी। And we used to sing in Hindi, pray in Hindi, preach in Hindi. और हम तो प्रार्थना हिंदी में करते थे, गीत हिंदी में गाते थे, प्रचार हिंदी में करते थे। And people there couldn't understand the whole thing. और वहाँ के लोग कुछ भी नहीं समझ पाते थे। Because their Hindi is very different than ours. क्योंकि उनकी हिंदी हमारी हिंदी से बहुत ही अलग है। They almost speak like Urdu. उनकी हिंदी लगभग उर्दू की जैसी है। But anyhow, Dad used to do a lot of preaching. लेकिन कोई बात नहीं, पिताजी अधिक प्रचार वहाँ पर करते थे। But the problem with him was he couldn't speak good Telugu also. लेकिन समस्या ये थी कि वे भी तेलुगु बात नहीं कर पाते थे। Because he came to Mumbai when he was 7 years old. क्योंकि वे भी, मेरे पिताजी उम्र के 7 वर्ष के थे तब मुंबई आए थे। So he lived almost all his life in Mumbai. तो उन्होंने भी संपूर्ण जीवन जो है मुंबई में ही बिताया। But he used to manage, he could speak in Telugu language. हालांकि वो तेलुगु भाषा में बात कर पाते थे। And that 5-6 years the Lord took me to different districts in Andhra Pradesh. और वो 5-6 साल प्रभु मुझे आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में ले गया। I used to speak in English. और मैं अंग्रेजी में बात करता था। And God helped me with a brother that was a minister of this message. और प्रभु ने मुझे एक ऐसे भाई के द्वारा मदद की जो कि इस संदेश का एक सेवक था। Which whom I've seen in the vision, the Lord showed me. और उस भाई को, उस सेवक को प्रभु ने दर्शन में मुझे बताया था। And we were traveling together till 1996. और 1996 तक हम दोनों एक साथ यात्रा करते थे। And I preached in every denomination that was
in Andhra Pradesh. और आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी सांप्रदायिक कलीसिया है, लगभग हर एक संप्रदाय की कलीसिया में मैंने वहाँ प्रचार किया है, Except for Catholic Church. सिवाय कैथलिक कलीसिया के। And I used to preach the message मैं वहाँ पर इस संदेश को प्रचार करता था and never used to take the prophet's name, और भविष्यवक्ता का नाम कभी नहीं लेता था, but I used to preach what the Lord has revealed to me. लेकिन मैं उन बातों को प्रचार करता था जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट की है। And people used to say, hey, we never heard these things. और लोग कहते थे कि इन सब बातों को तो हमने कभी नहीं सुना है। The things that you spoke are in the Bible. आपने जो बातें कही वो बाइबल के अंदर है, And I used to show them the scriptures. और मैं उनको फिर वचन बताता था। And that's how the Lord used me for almost 6-7 years. और इसी प्रकार से अगले 6-7 वर्ष प्रभु ने मेरा इस्तेमाल वहाँ पर किया। But when the brother left me, लेकिन जब वो जो सेवक अनुवाद करते थे वो जब छोड़ के चले गए, he did wanted to translate for me. क्योंकि वो अब मेरे लिए अनुवाद नहीं करना चाहते थे, And I came home, very discouraged and broken-hearted. और फिर मैं घर आया काफी निराशा और टूटा हुआ हृदय था मेरा, Because I was like, challenged by the language. और क्योंकि अब मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो भाषा की चुनौती थी। And I fasted and prayed in the presence of God for 3 days. और 3 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने उपवास और प्रार्थना की, And I asked the Lord to help me. और मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी सहायता करे। I said, Lord, this is the reason I didn't want it to come. और मैंने प्रभु से कहा कि यही वो मुख्य कारण है जिसके कारण मैं यहाँ हैदराबाद नहीं आना But I चाहता था। never realized that God had such a great work for me. लेकिन मैंने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि इतना महान कार्य प्रभु ने मेरे लिए वहाँ रखा था। I never thought that God would do something beyond my imagination. और मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी कल्पना से परे परमेश्वर वहाँ पर काम करेगा। So that was Sunday morning. We just gathered in our home. और ये रविवार की सुबह थी, हम अपने घर में इकट्ठा हुए, And I said, this is the last day we're going to pray and sing in Hindi language. और मैंने कहा कि ये आखिरी दिन होगा कि हम प्रार्थना और गीत हिंदी भाषा में करने वाले हैं। Hereafter we're not going to pray or sing in Hindi. उसके बाद हम कभी भी हिंदी भाषा में प्रार्थना और गीत नहीं गाएंगे। So people were surprised. तो लोग अचंभित हुए। Just about 7-8 people. केवल 7 या 8 लोग थे केवल। So we prayed and we started singing and worshiping the Lord. और फिर हमने प्रार्थना की और गीत गा के परमेश्वर की आराधना करने लगे। And when my time came to preach, और जब मेरा समय आया कि मैं प्रचार करूं, we prayed the last prayer in Hindi. हमने आखिरी प्रार्थना हिंदी में की। And I said, Lord, when I say amen, और मैंने कहा प्रभु जब मैं आमीन कहूंगा, I don't know what you're going to do, और मैं नहीं जानता कि आप क्या करने जा रहे but हैं, help me to speak in Telugu. लेकिन आप मेरी सहायता करें कि मैं तेलुगु में बात कर सकूं। And you wouldn't remember, you cannot imagine or you cannot believe what I'm saying. और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, ना ही विश्वास करेंगे कि जो मैं अब आपको कहने वाला हूँ। As soon as I said amen, the Lord began to anoint my life. Amen. And I started speaking in Telugu. जैसे ही मैंने प्रार्थना आमीन कहा, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया और मैं तेलुगु भाषा में बात करने लगा। And I preached that day in Telugu और language. उस दिन मैंने तेलुगु भाषा में वहाँ पर प्रचार किया। I even read my English Bible today. आज भी मैं अपने अंग्रेजी बाइबल को ही पढ़ता हूँ। All my notes are in English. मेरी सारे नोट्स भी अंग्रेजी में हैं। But God helped me to preach in Telugu. लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं तेलुगु में प्रचार कर पाऊँ। After a year or so, God helped me to read the Telugu Bible. और 1 वर्ष के बाद मैं तेलुगु बाइबल भी पढ़ पाया। Without going to school, without learning the alphabets. और बगैर स्कूल जाए, बगैर उस क पढ़े मैं तेलुगु भाषा में पढ़ने पाया। If you ask me to explain how did it happen, I cannot help explaining it. यदि आप कहेंगे कि इसे आप समझाइए कैसे हो पाया, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। It's God's doing. ये तो परमेश्वर का कार्य है। He knows better than what I know. मैं जो जानता हूँ उससे बेहतर वो जानता है। And then God helped me to even translate in Telugu. और प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं इतना ही नहीं कि प्रचार, लेकिन मैं अनुवाद भी तेलुगु में करने लगा। Since that time, by the help of the Lord, I can preach, I can read, and I can translate in Telugu language. उस समय से लेके अब तक अब मैं तेलुगु भाषा में प्रचार कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और अनुवाद भी कर सकता हूँ। And the Lord took us, me and Dad, my brother, to several places in Andhra Pradesh,
and Telangana. और प्रभु ने मुझे, मेरे पिताजी और मेरे भाई को आंध्र प्रदेश के विभिन्न जगहों और तेलंगाना के विभिन्न जगहों में ले गया। And I'm thankful to God for His grace and mercy. और परमेश्वर की अनुग्रह दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Now God has blessed me with 300 people in the church. और अब प्रभु ने मुझे कलीसिया में 300 लोगों से आशीषित किया है। And I'm really thankful to Him. और मैं वास्तव में उसको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। No matter where we are born, where we are brought up, but God knows where to place us. लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, परवरिश कहाँ हुई, लेकिन परमेश्वर भली भांति जानता है कि कहाँ पे हमें रखना है। And I think the Lord had worked with me in Hyderabad, as He told me here. और जैसे परमेश्वर ने, as He told me here while I was in Mumbai. जब मैं मुंबई में था, जब परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया कि मुझे वहाँ जाना है, The first time the Lord spoke through my grandmother. अब पहली बार परमेश्वर ने मेरी दादी के द्वारा मुझसे बातें की। And the second time the Lord spoke through Brother Sundar Raj और दूसरी बार परमेश्वर ने भाई सुंदर राज के जरिए बातें की, from Kanyakumari district. जो कन्याकुमारी जिले से है। He told me the second night of the prayer meeting. उन्होंने उस प्रार्थना सभा की दूसरी रात को मुझसे कहा, We were in Brother Daniel Christian's church. हम पास्टर डैनियल क्रिश्चियन के चर्च में थे, And he was preaching like this. और इस प्रकार से वो प्रचार कर रहे थे। And I was sitting to his right hand in the corner of the wall. और मैं उस दीवार के कोने पर दाहिनी ओर में बैठा हुआ था। And in the middle of the service he paused and he said, Brother Sam, the Lord told me last night to tell you. और सभा के बीच में वो रुक कर कहते कि भाई सैम, पिछली रात प्रभु ने मुझसे कहा है आपको बताने के लिए। And the Lord is wanting you to go to Hyderabad. You have no work in Mumbai. और उन्होंने वो वहाँ से कहा कि परमेश्वर चाहता है कि आप हैदराबाद जाए, आपके लिए मुंबई में कोई काम नहीं है। And then it was me personally also, the Lord spoke to me. और उसके बाद तीसरा जो था, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने मुझसे बातें की। I want to thank God for that. इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना He चाहता knew हूँ। there was a great work to be done. वो जानता था कि वहाँ पर बड़ा कार्य रखा गया था करने के लिए। I think the Lord has accomplished what He had to accomplish. और मुझे लगता है कि परमेश्वर ने उस बातों को पूरा किया जो वो पूरा करना चाहता था। But we are still continuing the work of the Lord. और अभी भी हम उस काम को बरकरार रखे हुए हैं। Last month I baptized 6 people. और पिछले महीने मैंने 6 लोगों को बपतिस्मा दिया। And I'm looking for that last one. और मैं उस आखिरी भीड़ की तलाश में हूँ। And coming back to Mumbai, और फिर जब मैं मुंबई आया, Brother Prabhudas and myself, we were just like, sons born to a same mother. और भाई प्रभुदास और हम जब मुंबई में थे, हम ऐसे थे जैसे कि एक माँ के 2 बेटे। Likewise, me and Pastor Andrew. जैसे कि मैं और पास्टर एंड्रू है, We were like just own brothers. हम ऐसे थे जैसे कि जन्मे हुए भाई। We used to fight and we used to, go for prayer meetings and we used to, do a lot of things. और हम प्रार्थना सभाओं के लिए जाते थे और बहुत से कामों को करते थे। Sometimes we used to fight. और कई बार हमारी लड़ाई भी होती थी। Yeah, he used to beat me sometimes. कई बार वो मुझे मारते भी थे। But he has not beaten me much. लेकिन ज्यादा नहीं मारा है। He was very close to my heart. क्योंकि वो मेरे हृदय के बहुत सबसे करीब है। Likewise, Brother Prabhudas also. उसी प्रकार से भाई प्रभुदास भी। We used to talk a lot about the message. वो बहुत ज्यादा इस संदेश के विषय में मुझसे चर्चा करते थे। Whatever he used to read, I used to read. और जो वो पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। And then we used to both sit down and talk. और फिर हम बैठकर उस विषय पर चर्चा करते थे। Because we were staying in Hex staff quarters. और क्योंकि हम हेक्स जो कंपनी थी उसके स्टाफ क्वार्टर्स में रहते So थे। he used to come on the duty. और भाई वहाँ पर ड्यूटी पर आते थे। And I used to find out which gate he is sitting. और फिर मैं देखता था कि कौन से गेट में भाई बैठे हुए हैं। Most of the time he used to take the gate near the pipeline. और बहुत से बार वो पाइपलाइन के पास जो गेट था वहाँ पर वो ड्यूटी लेते थे। Because there is no much traffic there. और वहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी, लोगों का आना जाना नहीं। If he was in the main gate, we couldn't sit down and talk. अगर मेन गेट में ड्यूटी होती तो हम बैठकर ऐसी बातें नहीं कर So पाते। normally he used to take the duty on the pipeline side. तो अक्सर वो पाइपलाइन की और वो ड्यूटी लिया करते थे। And that's when I used to go and sit down hours and hours and hours. और उस समय में जाकर वहाँ बैठकर घंटों घंटों उनसे बातें करता And था। our topic would be Lord Jesus Christ. और हमारा विषय केवल एकमात्र होता था, वो प्रभु यीशु मसीह। And another topic was the message of the hour. और दूसरा विषय की इस घड़ी का संदेश। And we used to discuss, we used to, learn from each other. और हम चर्चा करते थे और एक दूसरे से हम सीखते थे। Travel different places in Gujarat
in Maharashtra, और महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न जगहों में हमने एक साथ यात्रा करी है, preaching together, एक साथ हमने प्रचार किया है, and I cannot forget those golden days. और उस सुनहरे पलों को मैं भूल नहीं सकता। And that's why I love my brethren. इसलिए मैं अपने भाई से प्रेम करता I हूँ। had a desire since long time और मेरे हृदय में बहुत समय से लेकर एक इच्छा थी to stand in Mulund and preach. कि मैं मुलुंड में खड़े होकर प्रचार करूं, That's because this was my birthplace. क्योंकि ये मेरा जन्म स्थान है। And I really thank God tonight. और आज की रात के लिए मैं वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I'm a very small man, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ and the Lord Jesus, by His grace, saved my life. और परमेश्वर ने उस यीशु मसीह ने अपनी अनुग्रह से मेरे जीवन को बचाया है। And no matter where I preach, which country I travel, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से देश में यात्रा कर रहा हूँ और प्रचार कर रहा हूँ। my dad said, stay always humble. मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई है कि हमेशा नम्र बनकर He रहना। said, son, when the pride comes, the Holy Ghost will leave us. और उन्होंने कहा, बेटे जब तुम्हारे अंदर घमंड अहंकार आएगा तो पवित्र आत्मा तुमको छोड़कर चला So no जाएगा। matter what, I want to stay just humble. इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, मैं केवल नम्र रहना चाहता हूँ। Humble like my father. मेरे पिताजी के समान नम्र रहना चाहता हूँ। Humble like my heavenly father. मेरे ईश्वर के पिता के समान में नम्र रहना चाहता And my physical father हूँ also. और मेरे स्वाभाविक पिता के समान भी। My dad had a great testimony in Europe. मेरे पिताजी की महान गवाही थी यूरोप के अंदर। One of the pastors, he told me one day, हम उस यूरोप के एक पास्टर ने एक दिन मुझे इस बात को बताया। and he said, number one was Jesus Christ was so humble. उन्होंने कहा पहला नंबर कि जो यीशु मसीह बहुत ही नम्र व्यक्ति थे। He said, I know Brother Branham was also a very humble man, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि भाई ब्रैनम भी बहुत नम्र व्यक्ति but I थे, haven't seen him or met him, लेकिन मैंने भाई ब्रैनम को तो देखा नहीं है, ना मुझसे मुलाकात but I हुई, met your father. लेकिन मेरे आपके पिताजी से मुलाकात हुई And he है। is the most humble man after the Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह के बाद ये दूसरा नम्र व्यक्ति है। And I really was blessed by that और उस गवाही testimony. को सुनकर मैं निश्चित रूप से आशीषित हुआ। So Amen। I'm really blessed और मैं वास्तव में आशीषित हूँ इस बात से for such a wonderful father and mother the Lord gave me. कि इतने अद्भुत माता और पिता परमेश्वर ने मेरे लिए दिए। And I thank God. I know they are in glory resting in the presence of God. और मैं जानता हूँ कि वो महिमा में परमेश्वर की उपस्थिति में आप विश्राम कर रहे I हैं। miss them very much. मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। God has blessed me with 2 children, प्रभु ने मुझे 2 बच्चों से आशीषित किया है and they both are married, they're grown up, और दोनों विवाहित है और बड़े हैं। and my daughter is a medical doctor. और मेरी जो बेटी है वो मेडिकल डॉक्टर है My son-in-law is also a medical doctor, और मेरे दामाद भी डॉक्टर है, but they both serve the Lord. लेकिन वे दोनों भी प्रभु की सेवा करते They हैं। believe the message. वे इस संदेश पर विश्वास करते हैं। My son-in-law is a preacher also. मेरे जो दामाद है वो प्रचारक भी है And my son, और मेरे बेटे he's also married उनकी भी शादी हुई है from a sister from Brother Biscuit's church. और उस बहन से शादी हुई जो भाई बिस्कल की कलीसिया से थी। She was with Brother Biscuit, वो I mean बहन in the church, वो भाई बिस्कल की कलीसिया में थी and Chriswell got married to her. और फिर मेरा जो बेटा क्रिसवेल है उसकी उस बहन के साथ शादी हुई। So he now lives in Canada, अब वो कनाडा में रहता है and they both love the Lord too. और वे दोनों भी प्रभु से बहुत प्रेम करते They हैं love the message. और वे संदेश से भी प्रेम करते हैं। He's very active in the church that he goes, और जिस कलीसिया में वो जाता है वहाँ पर बहुत ही एक्टिव है and he takes care of the sound, he takes care of the live streaming, he takes about care of the projection. और प्रोजेक्शन उस कलीसिया में प्रोजेक्शन लाइव स्ट्रीमिंग और जो इंस्ट्रूमेंट्स है इस सभी का काम बेटा देखता है। He's working for a local government in Canada. और कनाडा के अंदर जो स्थानीय गवर्नमेंट है वहाँ पर वो जॉब करते हैं So I'm really thankful to God. और इसलिए मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। That's my greatest achievement in my life. ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन के अंदर। And just pray for my family. और मैं चाहूँगा कि आप मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। My only desire is to serve the Lord. मेरी एक ही इच्छा है कि मैं प्रभु की सेवा करूँ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So God bless you all. इसलिए प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे And good to see every one of you one more time. और आप सभी को फिर से एक बार देखकर अच्छा लग रहा है। I have my relatives here sitting. मेरे रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। And I'm so glad to see them. मैं उनको देखकर बहुत ही आनंदित It's been a long time to me
meet our loved ones. और ये काफ़ी समय हो गया है कि हम अपने प्रियजनों से नहीं मिले थे, But I'm so glad to see them tonight. लेकिन आज रात उन सबको देखकर मैं बहुत ही आनंदित So one more time, God bless you. हूँ। फिर से एक बार प्रभु आप सबको आशीष दे। Pray for Sister Catherine. बहन कैथरीन के लिए आप प्रार्थना में याद रखिए, She's not well, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, and just keep her in your prayers. लेकिन आपकी प्रार्थना में आप उन्हें याद कीजिए। Amen. आमीन। I would like to speak on a little subject, little thought that God put it on my heart, एक छोटा से विषय पर मैं जो प्रभु ने मेरे हृदय पर डाला है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। and my title tonight is Fellowship with God is our utmost priority. और मेरा जो शीर्षक है आज का वो है कि परमेश्वर के साथ सहभागिता यही हमारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। I'll try to finish as early as possible. मैं जितना हो सके जल्दी छोड़ने की कोशिश करूंगा I won't keep you long because tomorrow again you have to go to work, और ज्यादा देर तक आपको नहीं रखूंगा क्योंकि कल फिर आपको काम पर जाना है and I understand that. और मैं इस बात को समझता हूँ। So we'll just get into the word of the Lord. आइए हम फिर परमेश्वर के वचन में सीधे जाते Now हैं। John in his epistle writes in verse 5 और यूहन्ना उसकी पत्री में 5वें पद में इस प्रकार से लिखता है of chapter 1, और पहले अध्याय के, said, "This then is the message which we have heard of him ये जो सुसमाचार है हमने उससे सुना है and declare unto you और that तुम्हें God is सुनाते light, हैं कि परमेश्वर ज्योति है and in him is no darkness at all." उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। Amen. Amen. We all know that. हम सभी इस बात को जानते हैं। If we say that we have fellowship with him यदि हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता है and walk in darkness, और फिर अंधकार में चले we lie and do not the truth. और तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। If we say that we have fellowship with him यदि हम कहते हैं कि हमारी सहभागिता उसके साथ है and walk in darkness, और फिर अंधकार में चलते हैं that makes us liars तो वो हमें झूठा ठहराता है। and we do not the truth. तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर सत्य नहीं है। That means when we say that we have fellowship with God, और जब हम कहते हैं कि हम उसके साथ चलते हैं और उसके साथ हमारी सहभागिता है, that means we have divorced the darkness, the world and the things of the world. इसका अर्थ ये है कि हमने संसार और अंधकार को त्याग दिया है। Praise the Lord. तो परमेश्वर की स्तुति हो। Because we cannot serve two masters in one time. क्योंकि एक ही बार में हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। We cannot put our feet in the world and we cannot put our feet in the word of God. और हम एक पैर संसार में और एक पैर परमेश्वर के वचन में नहीं रख सकते। That's why God's prophet spoke about it. इसलिए तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने इस विषय पर बातें की। He said when God calls somebody, he calls for the total separation. यदि परमेश्वर किसी को बुलाता है तो संपूर्ण रीति से उसको वहां से अलग करता है। That means we should have no connection with the world. इसका अर्थ यह है कि संसार के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। Amen. आमीन। That means we cannot, it's sometimes it doesn't, people don't understand. और कई बार ऐसा है कि लोग इसको समझ नहीं पाते। They said, how is this possible? How is this possible? कहते कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव हो We सकता are है। living in the world and we have to do certain things. और कहते हैं कि हम तो संसार में जीते और कुछ काम हमको इस संसार में करना पड़ता But है। we have to understand one thing. लेकिन हमें एक बात को समझना है, A ship can be, going or making its journey in the sea and it is worthy for the ship. एक जहाज जो समुद्र पर चल रहा है, It is worthy, it can travel. और वो इसके योग्य है कि वो वहां पर यात्रा कर सकता है। But the sea water shouldn't be coming into the ship. लेकिन जो पानी है समुद्र का वो जहाज के अंदर नहीं आना चाहिए। So what happens if the water comes into the ship? क्या होगा यदि जहाज के अंदर समुद्र का पानी आएगा? It will go beneath the sea. तो फिर वो जहाज समुद्र के तल तक पहुंच जाएगा। So we have to live in this earth इसलिए हमें इस संसार में जीना है, because God has placed us on the face of this क्योंकि earth. परमेश्वर ने संसार में हमें रखा है And we are placed here with a great purpose in our lives. और परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में एक महान उद्देश्य के साथ रखा है। So we cannot get the world into us. इसलिए हम संसार को हमारे अंदर आने नहीं देंगे। If that is happening, then we will sink in this world. और ऐसा होता है तो हम इस संसार में डूब जाएंगे। That means we will walk in darkness. इसका अर्थ है कि हम फिर अंधकार में चल रहे हैं And that makes us liar. और ऐसा करने से हम अपने आप को झूठा ठहराते And हैं we are not doing the truth. और फिर हम सत्य पर नहीं चलते। This is very important for our lives today. हमारे जीवनों के लिए आज ये सबसे महत्वपूर्ण बात है We must have fellowship with our God. कि आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता हो। It's not only on Sundays ये केवल संडे के दिन ही नहीं or at the special meetings like this या फिर कोई विशेष सभा जो अभी है ऐसे समय में नहीं or midweek services या फिर सप्ताह के बीच में जो होता है उस समय नहीं or not on the cottage prayer meeting या
फिर कोई कॉटेज प्रेयर होती है, किसी के घर में सभा होती है, उस समय We नहीं। are talking about fellowship every moment of our life. लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन के हर एक क्षण उसके साथ सहभागिता होनी चाहिए। Amen. We must be in fellowship with God every moment of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षण हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी चाहिए, Because that's what God wanted us. क्योंकि यही परमेश्वर हमसे चाहता है, Because He's a lonely God. क्योंकि वो अकेला परमेश्वर है। That's not the Bible says there is no one before me and there will be no one after me. क्या बाइबल नहीं कहती कि मुझसे पहले कोई नहीं था और मुझसे आगे कोई होगा? He said, I am that I am. वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, Who was, who is, and who is to come. जो था, जो है और जो आने वाला है। Amen. हालेलुया। So He's a lonely God. इसलिए वो अकेला परमेश्वर है And He wants fellowship. और इसलिए वो सहभागिता चाहता है। In the message fellowship, the prophet of God said, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने सहभागिता इस नामक संदेश में कहा he है, says, then when He wants fellowship, और तब जब वो सहभागिता चाहता है, and when we want courtship, और तब जब हम उसके साथ प्रेम मिलाप चाहते हैं, and things like that, और ऐसी ही कुछ कुछ चीजें, it has to come upon the basis of an agreement. और ये तो एक सहमति के आधार पर होना चाहिए। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति When हो। two people have to have a fellowship, जब दो लोग संग सहभागिता करने के लिए आते हैं, praise the Lord, परमेश्वर की स्तुति हो, then the agreement is needed. तब उसके लिए एक सहमति पत्र होना चाहिए। Without the agreement, बिना सहमति के, praise the Lord, the fellowship cannot happen. बिना सहमति के सहभागिता नहीं हो सकती। Now we shouldn't walk in the world, हमें संसार में नहीं चलना है, or we should be walking in the darkness. या फिर हमें अंधकार में नहीं चलना है। But if we walk in the light, लेकिन यदि हम ज्योति में चलते हैं, as He is in the light, जैसे कि वो उजाले में है, we have fellowship one with another. तब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं। And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. और फिर उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So when we want fellowship, इसलिए जब हम सहभागिता चाहते हैं, hallelujah, Hallelujah. we must walk in the light. तो हमें उजाले में चलना चाहिए, Because He is in the light. क्योंकि वो उजाले में है। Because He is in the light, क्योंकि वो उजाले में है, we must walk in the light. इसलिए हमें भी उजाले में चलना चाहिए। Walk in the light of the present day. और इस दिन के उजाले में हमें चलना We चाहिए। can't walk in yesterday's light. कल के उजाले में हम नहीं चल सकते। Yesterday is a history. बीता हुआ कल इतिहास है। We can't walk in Luther's light. हम लूथरन के दिनों में नहीं चल सकते, We cannot walk in Wesley's light. और जो वेस्ली का उजाला था उस उजाले में नहीं चल We सकते। cannot walk in Pentecostal light. पेंटिकोस्ट का जो उजाला था उसमें हम नहीं चल सकते, Because the scripture says, क्योंकि वचन कहता है, in the evening time there shall be हालेलुया, light. वचन कहता है कि सांझ के समय उजाला होगा। And we are living in that evening और हम time. उस सांझ के समय में आज जी रहे We हैं, have come to the end of this world. क्योंकि अब संसार का ये अंत तक हम आ पहुंचे We हैं। know that God has sent a prophet, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को भेजा है, and He sent a message to us. और उसने हमारे लिए एक संदेश को भेजा है। And that message is the light of this day. हालेलुया, और वो संदेश ही इस दिन का उजाला है। And say amen. तो हम आमीन कहेंगे। Don't be quiet, brother, sister. भाइयों बहनों, ऐसे शांत मत बैठिए। We must be most happiest people on this earth. आमीन। हम तो इस पृथ्वी पर सबसे खुश नसीब लोग होने चाहिए। You know why? आपको पता है क्यों? Because God has chosen us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, And He has placed us in a special position. और उसने हमें एक ऐसे विशेष स्थान में रखा है। What is your position today? आज आपका स्थान कहाँ है? Brother Branham says, I'll call you Mrs. Jesus. आमीन। Brother Branham says, I'll call you Mrs. Jesus. Call you as Mrs. Jesus. भाई ब्रह्म ने कहा है कि मैं आपको श्रीमती यीशु कह के पुकारता I'm हूँ। standing here today और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ in the palm of the body of Jesus Christ. एक प्रभु यीशु मसीह की देह का एक भाग होकर। Praise the Lord. परमेश्वर की And स्तुति you are the wife of Jesus Christ. और आप प्रभु यीशु मसीह की पत्नी हो। I'm speaking to her. It's a privilege for me to stand before you. और मैं आपको कहता हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। There is no poor, there is no rich in the sight of God. और प्रभु के दृष्टि में कोई आप गरीब और कोई धनवान नहीं है। It's the blood of Jesus Christ. ये तो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है, The blood of Jesus Christ has purchased us और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे हुए हैं, and washed us from all sin. और हमारे सारे पापों से उसने हमें साफ So किया। as He is in the light, जैसे वो उजाले में है, we must walk in the light. हमें भी उजाले में चलना है। Then we have fellowship with one another. तब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता कर सकते And हैं, then the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. और तब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता So है। if you want to have fellowship, तो यदि आप सहभागिता करना चाहते हैं, then it will come upon the basis of an agreement. तो उसे तो एक सहमति
के आधार पर होना चाहिए। Now, when God made man in the beginning जब परमेश्वर ने मनुष्य को आरंभ में बनाया to fellowship with Him, ताकि उसके साथ सहभागिता कर सके, but before He could create a man, लेकिन इससे पहले कि वो मनुष्य की सृष्टि करता, the Bible says, "And who is this Melchizedek?" बाइबल नाम ये मलकीसेदेक कौन है नामक संदेश में कहते हैं। Now, in the beginning, और आरंभ में God dwelled alone, आरंभ में परमेश्वर अकेला निवास करता था and He dwelt with His attributes. और वो अपने गुणों के साथ वास करता था। Praise God. परमेश्वर की His स्तुति। attributes was His thoughts. उसके गुण ही उसके विचार थे। There was nothing, ये और कुछ भी वहां पर नहीं था, just God alone. केवल परमेश्वर अकेला। But He had thoughts, लेकिन उसके विचार थे and His thought became word, और उसके विचार ही उसके शब्द बन गए and the word was manifest. और फिर वो वचन प्रकट हो गए The word began to be spoken, और जब वचन बोला गया and then it was materialized. और तब वो सामने दृश्य रूप में So आया। when God made man in the beginning, और जब परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य को बनाया, why did He make man? उसने मनुष्य को क्यों बनाया? Why you are here today? आज आप यहाँ किस लिए? Why did He choose you? उसने आपको क्यों चुना? Why He predestinated you? उसने आपको पहले से क्यों ठहराया? Why He came to this world? वो आप इस पृथ्वी पर किस लिए आया? Why did He shed His blood on Calvary? कलवरी पर उसने अपना लहू क्यों बहाया? Because we were sold under sin, क्योंकि हम पाप में बिके हुए थे and we were in bondage. और हम बंधुआई में थे। But He came to redeem us. लेकिन वो हमें छुटकारा देने के लिए आया। To redeem means bring us back to our original state. छुटकारा देना यानी कि अपने मूल स्थान में फिर से लौटाया। That's why He came to this world. इसलिए वो इस संसार में आए। My brother, my sister, और इसलिए नहीं मेरे भाइयों बहनों, and the reason He has placed us here today, वो कारण है क्योंकि उसने हमें उस वजह से यहाँ पर रखा हुआ He है, wants fellowship with you. क्योंकि वो आपके साथ सहभागिता चाहता है। In the Laodicean age, Laodicean age, हम इस लौदीकिया युग में they have sent Jesus out. लौदीकिया युग ने यीशु मसीह को बाहर भेज दिया। But He's alone, remember that. आप इस बात को याद रखिए कि वो हमेशा अकेला है। And that's why He stood there and He began to knock at the इसलिए door. वो खड़े होकर खटखटा रहा है। Praise the Lord. He's not knocking at the church door वो कलीसिया के द्वार पर नहीं खटखटा रहा or any other organization door. या किसी संस्था के द्वार पर नहीं खटखटा रहा। He's knocking at the individual door of a heart of a person. वो हर एक व्यक्तिगत के हृदय के दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा है। That's why He said, if anyone hears my voice इसलिए उसने कहा यदि कोई मेरा शब्द सुनता है and open the door, और द्वार को खोलता है, I will come into him मैं अंदर उसके साथ आकर and I will sup with him उसके साथ भोज करूंगा and he with me. और वो मेरे साथ। Every fellowship हर एक सहभागिता includes eating. हर एक सहभागिता में भोजन शामिल होता है। If you want a fellowship, अगर आप सहभागिता चाहते if हैं, you want fellowship with God, अगर आप परमेश्वर के साथ सहभागिता चाहते हैं, then eating is involved. तो खाना उसमें शामिल है। If it is a spiritual fellowship with God, यदि आत्मिक सहभागिता परमेश्वर के साथ है then it's a spiritual eating. तो ये आत्मिक खाना होगा। That's why we must read our Bible every day. इसलिए हर दिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। How many times? कितने बार? At least 3 times a day. 3 बार कम से कम। And pray. और प्रार्थना, The Bible says pray without ceasing. और बाइबल कहती है कि बिना रुके प्रार्थना करते रहिए। Amen. आमीन। So wherever you are, इसलिए जहाँ कहीं भी आप हैं, you can be in prayer. आप प्रार्थना में रह सकते If हैं। you're driving, if you're working. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। See, that's why God wants us to be in constant relationship with Him. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसके साथ संबंध में बने रहें। I don't know about you all. मैं आपके विषय में नहीं जानता। When I look at you, you look to be a very good people. जब मैं आपके पास देखता हूँ तो आप बहुत ही अच्छे लोग दिखाई But देते some हैं। people I've seen, लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है। they only remember Bible on the Sunday morning. कुछ लोगों को देखा है जो संडे के दिन ही, द्वार के दिन बाइबल को झाड़ते फूकते हैं यहाँ से लाने Because के लिए। they wanted to get the Bible to the church. क्योंकि उनको बाइबल चर्च में लाना होता I'm sorry. है। मुझे माफ कीजिए, We must read our Bible every day. हमें तो बाइबल को हर दिन पढ़ना है And pray every day. और हर दिन प्रार्थना करनी है। Hallelujah. Hallelujah. That's the duty of a true Christian. एक सच्चे मसीह का यह कर्तव्य है। So, इसलिए
when we are fellowshipping, जब हम सहभागिता करते हैं, it's sad to see nowadays. आज ये बहुत ही दुख भरी बात है इन दिनों में देखना। You sit on the table, आप जब टेबल पर बैठते हैं, when at home or when in the restaurant, चाहे घर पर टेबल पर बैठे हो खाना खाने के लिए या रेस्टोरेंट में बैठे हो, you know, people don't talk with each other. और अब ऐसा हुआ है कि लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते What हैं। they do is, वो क्या करते हैं? they will take their phone वो अपने फोन को लेंगे and they will just work on the phone. और फोन पर कुछ न कुछ करते And रहेंगे। here people are sitting around them. और हालांकि उनके इर्द गिर्द आसपास लोग बैठे हुए हैं। When we're sitting in the fellowship, जब हम सहभागिता करने के लिए बैठते it's हैं, better to throw this thing out तो बेहतर होगा कि इसको बाहर फेंक दें and talk to our brothers और and हमारे sisters. भाई और बहनों से एक दूसरे से बातें करें। When you are at home, जब आप घर पर हैं, talk to your children, तो अपने बच्चों से बातें करें, talk to your wife and husband. अपने पति और पति से बातें करें, Have fellowship. एक सहभागिता करें। But everybody, you know, if they take the phone in their hand, और हर कोई अपने हाथ में फोन रखेगा are walking there on the phone, और चलते हुए भी फोन, they are sitting there on the phone, और बैठे तो भी हाथ में they फोन, are on the flight, they are on the phone, flight, और फ्लाइट में है तो भी हाथ में फोन है, on the bus, they are on the phone, चाहे बस में हो तो भी हाथ में फोन in the है, train, they are on the phone, ट्रेन में है तो भी हाथ में फोन है। it's phone. तो हर जगह पर फोन 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 दिखाई दे रहा है। Why can't we live without this idiot? इस जो मूर्ख है इसके बगैर हम क्यों नहीं जी सकते? This has destroyed many lives. इसने बहुत से जीवनों को खराब किया है। Praise the Lord. So, इसलिए let's not do that. इसलिए ऐसा न करें। When you sit with your brothers and sisters, जब आप अपने भाई और बहनों के साथ बैठे talk with तो them. उनसे बातें कीजिए, Have fellowship. सहभागिता कीजिए, Because fellowship needs a basis of an agreement. क्योंकि जब सहभागिता करने के लिए एक सहमति का आधार होना चाहिए। To fellowship with Him, that's the reason man was made. और उसके साथ सहभागिता करने के लिए ही मनुष्य को सृष्टि की थी। Then the prophet of God says, तो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता कहते हैं, this man was in a perfect fellowship in the Garden of Eden. वो कहते हैं कि ये जो पहला बनाया और सृष्टि किया हुआ मनुष्य था, ये आदम की वाटिका में मधुर संगति में परमेश्वर के साथ था। Perfect fellowship with God. एक सिद्ध सहभागिता में परमेश्वर के साथ था। And how it must have been on that day, और ये किस प्रकार से उस दिन रहा होगा, that God would come down in the cool of the evening और सांझ के ठंडे समय जब परमेश्वर उनसे भेंट करने के लिए आया and call Adam, और फिर आदम को पुकारते थे, and he and Eve would come up, और तब आदम और हवा वहां पर आते and they would worship God. और तब वो परमेश्वर की वहां पर आराधना करते। Well, they were not in the classroom like we are today. हालांकि वो जैसे हम क्लासरूम में बैठे ऐसे वो क्लासरूम में नहीं थे, No, they didn't have no cathedral. और वहां पर कोई ऐसी बड़ा गिरजाघर भी नहीं था, They had no church. वहां पर कोई चर्च नहीं था, They had no house. वहां पर कोई घर नहीं था, The Garden of Eden, लेकिन आदम की वाटिका में Brother Branham said that was his cathedral. हालेलुया। भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो परमेश्वर का सबसे बड़ा गिरजाघर था। And it's not Adam and Eve coming as they wanted. और ये ऐसा नहीं था कि आदम और हवा आ रहे जैसा वो चाहते हैं, No, whenever God wanted them. लेकिन जब परमेश्वर चाहता था कि उनके साथ Anytime God wanted to talk to his son and daughter. जब कभी भी परमेश्वर चाहता कि अपने बेटे और बेटी से बातें करे, वो उनसे संगति करने आता। When God would come down in the cool of the evening. और सांझ के ठंडे समय जब परमेश्वर उनसे संगति करने के लिए आता, Those were the days. वो क्या है दिन थे Whenever God wanted, he would come. जब परमेश्वर चाहता उनसे संगति करने He would आता, call upon Adam and Eve. वो आदम और हवा को बुलाता। Today, आज the changes come. और आज वो बदलाव आया है, The world is changed. और संसार बदल गया है, People are changed. लोग बदल चुके हैं। It's not God coming to them now. और अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनके पास आ रहा है, Whenever they want, they will come to God. लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जब लोग चाहते हैं तब वो परमेश्वर के पास If आते they हैं। don't feel necessity, they will not. अगर उनको ऐसी जरूरत नहीं लगती है तो वो परमेश्वर के पास नहीं आते। That's why people don't come to church regularly. इसीलिए रेगुलरली लोग कलीसिया में नहीं आ पाते। अरे भाई साहब क्या हुआ, क्यों नहीं आए चर्च को? हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था. That's what they say. ऐसे ही तो वो कहते हैं, Oh, I don't feel good. मुझे अच्छा नहीं लग रहा I was not in a good mood. और मैं एक अच्छे मूड में नहीं था। That's the time you need to come. और ऐसा ही समय में आपको प्रभु के पास आना But है। when we are sick,
जब आप बीमार हैं, when we are in need, जब हमें हमारी जरूरत है, then we'll call pastor. तब हम पास्टर को, When we want to come to church, तब हम कलीसिया में आना चाहते then हैं the saints of God must pray. और चाहते हैं कि परमेश्वर के संत जन हमारे लिए प्रार्थना करें। Do you see how selfish we are? क्या हम देखते हैं कि हम कितने स्वार्थी हैं? It's so much changed. ये इतना बदल गया है, It's our wish now. अब ये हमारी इच्छा के मुताबिक हो रहा है। It's my life, ये मेरा जीवन है the way I want it. और जैसा मुझे चाहिए, This is what I will. और उसी प्रकार से मैं जीवन And जीऊंगा। no one has no right to say what I should do. और किसी के पास भी मुझे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। You people are very quiet. आप लोग बहुत शांत हैं, आप लोग शांत लोग हैं। Am I speaking any sense now? क्या मैं कोई बात कर रहा हूँ जिससे मैं कोई समझ है? है नहीं है? Then say amen. Amen. तब आमीन कहिए। Anyhow, so God could come in the cool of the evening, और तब सांझ के समय, ठंडे समय में परमेश्वर उनसे सहभागिता करने के लिए and they would worship God, और तब परमेश्वर की आराधना करते and they would fellowship and commune, और तब उससे बातचीत करते और उसके साथ संगति करते commune with one with another. और एक दूसरे के साथ बातचीत करते। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Whenever God used to come, जब कभी भी परमेश्वर नीचे आते थे, do you remember the statement that Branham made? क्या आपको याद आ रहा है जो भाई ब्रनाम ने एक वाक्य कहा? If the meeting is announced at 7 p.m., अगर सभा शाम के 7 बजे की घोषणा हो चुकी है, what did he say? तो भाई ब्रनाम ने क्या कहा? He is here at 7 p.m. तो वो यहाँ पर शाम के 7 बजे उपस्थित है, Because he's a God of time. हालेलुया, क्योंकि समय का परमेश्वर है। What about us? हमारे विषय में क्या? Well, we got many excuses, हमारे पास तो बहुत से बहाने हैं। right? सच बात Now, है। don't be quiet. आप शांत मत रहिए। I'm your brother, मैं आपका भाई हूँ, and I'm one of you. मैं आपके समान ही हूँ। Count me as a Mulundwala. मुझे मुलुन वाला ही समझिए। I'm not outsider. I'm from Mulund, मैं बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं यही का हूँ। right? क्या है? ठीक है। And I'm not here to condemn anybody. और मैं यहाँ पर किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं हूँ। No, I'm just trying to put the facts before you. मैं आपके सामने जो तथ्य है, सच बात है, उसको सामने रख रहा हूँ। I know this one thing, that truth is always bitter. और एक बात को मैंने ध्यान दिया कि सच हमेशा कड़वा होता But है। anyhow, brother, sister, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। a prophet of God says, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने कहा, that's the very thing that calls us together like this. और यही वो महत्वपूर्ण बात है जो हमें इस प्रकार से इकट्ठा करती है। Sitting together in heavenly places in Christ Jesus. मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हम यहाँ पर इस प्रकार से बैठते हैं Fellowshipping in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में हम सहभागिता करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are fellowshipping in the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा में सहभागिता कर रहे हैं। The difference in us, और जो भेद जो अलगाव हमारे अंदर है, we are all one in Christ Jesus. हम सभी यीशु मसीह में एक है। In the perfect harmony of fellowship. जो कि उस संगति की मधुरता में हम सब एक है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We are sitting in the heavenly places. हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं And we are fellowshipping with Him in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में होकर हम उसके साथ And सहभागिता so करते हैं। whenever we come into the house of God, इसलिए जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, as we are taught by our prophet, जैसे कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमें सिखाया गया we है, all need to bring our small fires with us. और हमें सभी को अपने साथ एक छोटी आग को लाना है। And then we all get together. और जब हम सब एक साथ आते हैं, Then all our fires become one. और जब हमारी सबकी आग एक हो जाती When है, we come in the unity of the Spirit, और जब हम आत्मा की एकता में आते हैं, and when we worship Him, और जब हम उसकी आराधना करते हैं, when we praise His name, जब उसके नाम की बड़ाई करते हैं, then we come in perfect harmony. तब हम सिद्ध मधुरता में आते हैं Harmony of fellowship. और सहभागिता की मधुरता। But what happens mostly, लेकिन कई बार क्या होता है, we come inside with no fire, और बिना आग के हम यहाँ पर अंदर आते and we हैं, try to just look who is worshiping, who is doing what. और हम इतना ही देखते हैं कि कौन आराधना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। But the reason we are here, लेकिन एक मुख्य कारण है जिसके कारण हम यहाँ पर हैं, together in the heavenly place. हालेलुया, कि स्वर्गीय स्थान में हम संगति करें। When we come inside the house of the Lord, जब परमेश्वर के भवन में हम अंदर प्रवेश करते and हैं, then we start worshiping in spirit, और जब हम आत्मा में उसकी आराधना करते हैं and in truth, और सत्य में आराधना करते हैं, brother, we are transformed
बातें कर रहे हो, telling him how good he is. और उसको हम बता दें कि वो कितना भला है, Hallelujah. And talk about his goodness. और उसकी भलाई की ही विषय में बात करो। God begin to talk to us. और फिर उसके बाद परमेश्वर आपसे बातें करना आरंभ My God. परमेश्वर का धन्यवाद हो Our God is not dead. कि हमारा परमेश्वर मरा हुआ He's alive. वो जिंदा परमेश्वर है, And he can speak to us. और वो हमसे बातें करता है। He can meet your heart's desire. आपकी हृदय की छोटी इच्छा उसे पूरा He कर can सकता है। touch you today. आज की रात वो आपको छू सकता है, He can help you today. आज की वो आपकी मदद कर सकता है। Amen. हालेलुया। If you can just come in with worship. आप यदि सिर्फ उसकी आराधना करें, He's sitting in heavenly places and have communion with him. और हम स्वर्ग के स्थान में बैठकर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, Fellowship with God. परमेश्वर के साथ सहभागिता And fellowship with each other. और एक दूसरे के साथ सहभागिता। That's what God intended in the Garden of Eden. यही तो परमेश्वर ने चाहा आदम की वाटिका में। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। That was his perfect will. ये उसकी सिद्ध मर्जी थी। Amen. Come say amen. क्या आप आमीन कहेंगे? Then that fellowship और अब वो सहभागिता between God and man was broken. और मनुष्य और परमेश्वर के बीच की सहभागिता फिर टूट गई, And the reason was sin. और इसकी वजह एक ही थी, पाप। My brothers, my sisters, मेरे भाइयों बहनों, it will take sin to break our fellowship with God. परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता को तोड़ने के लिए एक पाप काफी है। What is sin? पाप क्या है? Unbelief. ये अविश्वास। Unbelief is sin. अविश्वास ही पाप है। One word you doubt in your heart, एक शब्द अगर आपके मन में आपने संदेह किया, the fellowship is broken. तो परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता टूट गई। Now God अब परमेश्वर made a basis उसने एक ऐसा आधार बनाया and a ground upon which man could remain जिसके एक ऐसे जमीन, एक आधार बनाया जहां पर वो इंसान के साथ सहभागिता कर सके, or retain his fellowship. या फिर वहां पर वो अपनी सहभागिता को बरकरार रखे। It wasn't through get together ये कोई एक साथ आने के द्वारा नहीं, or an organization या कोई संस्था के द्वारा नहीं, or an education. या फिर शिक्षा के द्वारा नहीं, It was on the basis of the shed blood. ये तो कि सिर्फ बहाए गए लहू के आधार पर ही था। That's the only place of fellowship यही एकमात्र जगह है जहां पर हम उसकी आराधना कर सकते that हैं, we have with God today. जो कि परमेश्वर के साथ आज हमारी है। The only meeting place एक ही मिलने की जगह है, is through the blood of Jesus Christ. और वो तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। That's exactly right. See, ये बिल्कुल ठीक विधि से सत्य बात है। God made a basis for us परमेश्वर ने हमारे लिए एक आधार बनाया so that we could retain the fellowship. जिसके जरिए हम उस संगति को बरकरार रख सके। And the thing was the blood, the shed blood. और वो आधार वो परमेश्वर का बहाया गया लहू था। That's why we must remember Calvary every day. इसलिए हर दिन हमें कलवरी क्रूस को याद करना है। Hallelujah. We must be thankful to God for Calvary. उस कलवरी के लिए हमें हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। That shed blood वो बहाया गया लहू is our basis today. अब वो आज हमारे लिए आधार है। As far as we are under that blood, जब तक हम उस लहू के तले हैं, His blood cleanses us, उसका लहू हमें शुद्ध करता He है, washes us, वो हमें धो देता है, and He makes us pure and whole. हालेलुया, और वो हमें शुद्ध और पवित्र करता है। That's how we regain fellowship with God. इसी प्रकार से आप परमेश्वर के साथ सहभागिता बराबर रख सकते हैं। You love the Lord today. You love the Lord. आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Amen. God loves you too. परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। He loves us before we could love Him. इससे पहले कि हम उससे प्रेम करें, उसने हमसे प्रेम किया। In the Ephesian church age, और इफिस कलीसिया युग, now in the Garden of Eden, और अब आदम की वाटिका में, there were 2 trees standing in the midst of it. और उसके मध्य भाग में 2 पेड़ वहां पर थे। One was the tree of life, एक तो जीवन का वृक्ष था, and the second one was the tree of the knowledge of good and evil. और एक तो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था। And God ordained और परमेश्वर ने इस प्रकार से ठहराया that man should live by the tree of life. कि मनुष्य केवल वो जीवन के वृक्ष के द्वारा ही जीवित रह सके। He was not supposed to eat from the tree that is of knowledge and wisdom. वो तो और जो ज्ञान भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसको उससे न खाए। परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें If बनाया। that happens, he would die. यदि ऐसा होता है तो मनुष्य को उसकी मौत होगी। But what did man do? लेकिन मनुष्य ने क्या किया? He did partake of the other tree. लेकिन मनुष्य ने तो उस पेड़ के ही फल को खाया। And when he did, और जब उसने ऐसा किया, death entered into him by sin. और फिर पाप के द्वारा मृत्यु उस मनुष्य के अंदर आई, And he became separated from God. और तब परमेश्वर से वो अलग हो गया। My brother, my sister, मेरे
भाई और बहनों, see how dangerous this sin is. देखिए कि कितना खतरनाक ये पाप है। It's always good to avoid with the commandment of God. ये हमेशा बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर की आज्ञा के साथ बने रहे। What is the true sign that you love God? एक सच्चा चिन्ह क्या है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Somebody tell me from sister's side. बहनों के साइड से कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा सच्चा चिन्ह है कि जिसके द्वारा हम जान सकें What is the proof that you love God? ये क्या प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Can anybody? कोई बता सकता है? What is the proof you will give that you love God? क्या प्रमाण आप दे सकते हैं कि जिसके द्वारा पता चलेगा कि आप परमेश्वर से My प्रेम करते brothers, हैं? मेरे भाइयों, what is the proof you have that you love God? आपके पास प्रमाण क्या है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Anybody from the brothers? भाइयों में से कोई बता सकता है? Huh? Jesus said, यीशु ने कहा, if you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो keep my commandments. तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, Then only I will know you love me. तब ही मैं जानूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। God bless you, dear. प्रभु आपको आशीष दे। See, keeping the commandments, आज्ञाओं का पालन करने से that's the only proof that you love God. ये एकमात्र प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Right? Amen. Right. How many commandments God gave to Moses? मूसा के लिए परमेश्वर ने कितनी आज्ञा दी? How many commandments did Moses receive from God? मूसा को परमेश्वर के द्वारा कितनी आज्ञा दी? How many commandments? कितनी आज्ञा है? How many commandments? Huh? 10. Okay. How many God said do and how many God said don't do? उस आज्ञाओं में से कितना करने के लिए कहा और कितना नहीं करने के लिए कहा? How many God said to do and how many not to do? कितनी उस आज्ञाओं में से परमेश्वर ने करने के लिए कहा और कितनी आज्ञाएं नहीं करने के लिए कहा? Do you know? क्या आपको पता है? How many commandments from 10 God said, thou shalt not do, not do, not do? और 10 में से कितनी ऐसी आज्ञा जो परमेश्वर ने कहा तू ऐसा कर और ऐसा न कर? How many don't do's and how many do's? और कितनी नहीं करने के लिए और कितनी करने के लिए कहा है उस 10 में से? कोई बता सकता है? Second last bench. Yeah. You're in the second last bench. What? You're wrong. It's not right. ये गलत। Somebody from the brothers side. अगर कोई भाइयों की How many do's, how many don'ts? कितना करने के लिए कहा था और कितना नहीं करने के लिए कहा था? Nobody knows? कोई नहीं जानता है? We talk about mysteries. हम भेद की बातें करते हैं। Mysteries of 7 seals. Mysteries of 7 church ages. 7 कलीसिया काल और 7 मोहरों के भेद की बातें करते हैं। Mystery of the 7 serpent seed. और सिर्फ वंश का भेद की बातें करते हैं। Nothing against that. Nothing against that. मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा But हूँ, this is basic. लेकिन ये बहुत ही सामान्य बात है। How many do's and how many don'ts? कितनी करने के लिए कहा और कितनी नहीं करने के लिए कहा? 8 don'ts, 8 आज्ञाएं नहीं करने के लिए 2 do's. और उसमें से 2 कहा कि करने के लिए। 8 don't do 8 आज्ञाएं जो नहीं करनी थी and 2 do it. और 2 आज्ञाएं जिसको करने के लिए कहा। And what do people do today? और आज लोग क्या करते हैं? They don't do 8 things. और आज जो They do things that shouldn't be doing. 8 चीजें जो नहीं करने के लिए कही है, 8 आज्ञाएं उसे वे करते हैं। And 2, what they have to do, they don't do. और 2 चीजें जो करने के लिए कहे उसे नहीं करते। That's the problem. यही समस्या है। You can check your Bibles if you want. आप अगर चाहते तो अपने बाइबल में देख सकते हैं। See, that's what Paul said. इसलिए पौलुस ने कहा, He said, I would have never knew sin if the law wouldn't come. अगर व्यवस्था नहीं होती तो मैं पाप को नहीं जानता। Sisters, maybe you have done this in your homes. और बहनों, आपने हो सकता है अपने घरों में इस बात को किया होगा। You made a nice chicken curry. आपने हो सकता है कि बहुत ही अच्छी चिकन की करी बनाई Or है। maybe you have cooked a nice sweet. और हो सकता है आपने बहुत अच्छी मिठाई बनाई है And you kept it in a side. और आपने उसे बाजू में रखा था And you call your children. और आपने फिर अपने बच्चों को He बुलाया says, don't touch that. और आपने उनको एक विशेष आज्ञा दी कि इसे छूना नहीं। I'll just go to the shop and come back in 5 minutes. अब 5 मिनट में मैं दुकान जाकर आती हूँ। See, sister, what you should have done,
आपको क्या करना चाहिए था बहनों? You know, you should have just cooked the sweet and put it there and just go. आपको केवल जो मिठाई बनाई उसको वहीं पर रखकर आपको चले जाना And चाहिए get था। your work done and nothing would have happened there. और फिर अपना काम करके आकर कुछ नहीं होता वहां पे। When you say don't touch that, लेकिन जब आप बच्चों को बता दें कि इसको छूना नहीं, you know what happened? The curiosity in the mind of a child. राइट, तो क्या होता है कि बच्चे के जो मन में जो एक ऐसी भावनाएं होती है, So why mom said not to touch? क्यों मेरी माँ ने कहा कि इसको छूना नहीं है, Why she doesn't want me to touch? क्यों वो नहीं चाहती कि मैं इसको नहीं छू, What will happen if I touch? अगर मैं इसको छू तो क्या होगा? So finally, आखिरकार if there are 2-3 siblings together, अगर दो बच्चे घर में हैं you do it. तो वो दूसरे को कहेगा तुम, No, you do it. वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं, तुम And करो, the two will say, you do it. नहीं तो वो कहेगा नहीं तुम करो। So one smart guy, तो एक जो सबसे होशियार होता है he said, you know what? तो वो कहेगा आपको पता We है, three do it together. हम दोनों एक साथ करते हैं, Yeah, we three do it together. हम तीनों एक साथ करते हैं। So slowly they takes the lid out. तो धीरे से वो ढक्कन को ऊपर उठाते हैं And they three take. और वो तीनों उसमें से लेते हैं They eat and they watch for mom to come. और वो खाते हैं और फिर माँ का इंतजार करें कि Finally, when mom comes, और आखिरकार जब माँ आती है what she does? वो क्या करती है? She goes straight and she opens it और सीधे वो जाकर ढक्कन उठाती है and said, किसने खाया? So all the three will look at their faces. और फिर तीनों एक दूसरे के चेहरे के पास देखते हैं, Many. Not me, not me, not me. मैं नहीं, तीनों कहते हैं। See, if there was no law, अगर व्यवस्था नहीं होती they would have never thought about that. तो वो कभी भी इस बात को नहीं जानते। Paul mentions that in the book of Romans. पौलुस रोमी की पुस्तक में इस बात का उल्लेख करते हैं And God knew this would happen. और परमेश्वर जानता था ऐसा होगा, That's why he made a basis इसलिए उसने एक आधार बनाया that the man can stand on the basis. कि मनुष्य फिर उस आधार पर खड़े हो सकता है। And man shouldn't have done what he has done. और मनुष्य को वो करना नहीं था जो उसने किया, And immediately, और फिर तुरंत ही that God made a way for the man. और फिर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक रास्ता बनाया। He took an innocent lamb and killed it. उसने एक मेमने को लिया और वहां पर उसे मारा। Amen. Let's look into that. आइए हम उसमें देखते हैं। Now that tree back there in Eden, अब वो पेड़ जो आदम की वाटिका में, the tree which was the source of life, और वो पेड़ जो कि जीवन का एक श्रोता था, which was Jesus. जो कि यीशु था। In John chapter 6 through 8, और यूहन्ना की पुस्तक में 6 से 8 के बीच में हम पाते हैं Jesus says himself forth as the source of eternal life. यीशु अपने आप को एक अनंत काल का जीवन का श्रोता के रूप में प्रकट करता Called है। himself as bread of heaven. वो अपने आप को कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। And then he calls himself, if any man eat of him, he would never और die. फिर वो कहता है कि जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। He said, I was before Abraham. और वो कहता है कि मैं अब्राहम से पहले हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। He was before Abraham. जी हाँ, वो अब्राहम से पहले था। Then he prophesied that he himself would give them living waters. और फिर वो भविष्यवाणी करते कि वो स्वयं उस व्यक्ति को जीवित जल देंगे। If any man drank, he would never thirst again, और यदि जो कोई उससे पिएगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, but would live eternally. लेकिन वो फिर उसके आगे अनंतता तक जीवित He रहेगा। showed himself that he was a great I am. और उसने अपने आप को वो महान मैं हूँ करके He दिखाया। is the bread of life, वो जीवन की रोटी है, well of life, वो जीवन का जल है, the eternal one, वो अनंत परमेश्वर, the tree of life. वो जीवन का वृक्ष, Back there in Eden, वो फिर से वही जो आदम की वाटिका में था। praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। He will be in the midst of the paradise of God one day. परमेश्वर के जो वाटिका के एक दिन वो मध्य में होगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। So when man ate the fruit of the wisdom and knowledge, जब वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल मनुष्य ने खाया, brother and sister, भाइयों बहनों, look what the prophet of God says. देखिए परमेश्वर के भविष्यवक्ता क्या कहते When हैं। Adam began to educate himself, जब आदम ने खुद को शिक्षित करना चाहा, now he knows what is good and now he knows what is evil. और आपको जानते हैं कि भला क्या है और बुरा क्या है, Right? कैसे बात है? He educated himself. उसने अपने आप को इस बात की शिक्षा दी। And the prophet of God said, और परमेश्वर के भविष्यवक्ता कहते हैं, when men educate themselves, जब मनुष्य अपने आप को शिक्षित करते हैं, first thing that happens, पहली बात ऐसी होती है, they are away from one another. तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। When you educate yourself, जब आप अपने आप को इतना शिक्षित करते हैं, praise the Lord, परमेश्वर की स्तुति हो, and you get away from one another, तो आप एक दूसरे से दूर चले जाते they हैं। get complexes,
feelings, उनके अंदर ऐसी भावनाएं आती है, but you don't get no complex by the blood of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके अंदर ऐसी कोई गलत भावनाएं नहीं आई। So never try to educate yourself. इसलिए कभी भी अपने आप को शिक्षित करने का प्रयास न करिए। I'm not saying don't go to school, don't go to college. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कूल और कॉलेज में न जाए, It's a different spiritual meaning for that. इसके लिए इसका विभिन्न आत्मिक समझ है। It's not that you shouldn't have education. इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास कोई शिक्षा होनी ही नहीं No, चाहिए। that's not what the prophet of God ये said. बात नहीं है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता याद We're है। talking on the basis of, the tree of knowledge of good and evil. हम जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। Praise the Lord. परमेश्वर When you educate yourself, तो इसलिए जब आप अपने आप को शिक्षित करते हैं it takes me away from my brother. तो उस शिक्षा के कारण आप एक मेरे भाई से वो शिक्षा आपको अलग करती है। And then I will have complexes. और फिर उसके बाद हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आती And हैं my complex says, और मेरी भावना ये बताती है, I'm little bigger than my brother. मेरी भावना बताती है कि मैं मेरे भाई से थोड़ा बड़ा हूँ, I'm somebody. मैं अब कुछ हूँ, I'm little better than anybody else. आप जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा मैं बेहतर हूँ, I know little more knowledge than somebody else. और दूसरों से मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा है। Oh, this preacher doesn't know anything. This preacher doesn't know anything. और ये सेवक को कुछ नहीं पता, वो सेवक कुछ नहीं जानता, I can preach better. मैं तो इससे अच्छा प्रचार। You know who is the best preacher? आपको पता है सबसे अच्छा प्रचारक कौन है? Who? Huh? Brother Ramesh says who? Jesus Christ? Of course, he is the best. जी निश्चित रूप से यीशु सबसे बेहतरीन है। Let's come down a little bit low. और उससे थोड़ा सा नीचे आए। I know another preacher. मैं और एक सेवक को जानता हूँ, प्रचारक को। I know one more preacher. और एक प्रचारक को जानता हूँ, He's Mr. Devil. उसका नाम श्रीमान शैतान है। Mr. Devil knows scripture better than any preacher on this face of this earth. और इस पृथ्वी पर जो भी सेवक होगा उससे बेहतर वो शैतान इन सारे वचनों को अच्छे से जानता है। He stood there right before Jesus Christ. ये वो यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ, Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। And he said, it is written about you. It is written about you. और वो कह रहा था कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, About you. आपके विषय में ऐसा लिखा It's है, written about you like this. तुम्हारे विषय में ऐसा It's लिखा है, written about you like this. तेरे विषय में ऐसा लिखा है। He was quoting scripture. वो वचनों को हमें खोज कर रहा When he came into Eden, जब वो आदम के अंदर आया, he came with the word. वो वचन के साथ आया, He was quoting the scripture. क्योंकि वो वहां पर हवा को वचन ही बता रहा था। Can you say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And he preached one sermon, और उसने एक प्रचार किया, and he took 1/3 of the angels of God. और एक प्रचार करने के द्वारा 1/3 स्वर्गदूतों को वहां से निकाल दिया। And God left, God was left in minority. और जब फिर परमेश्वर अल्पसंख्यक में पाया गया, He had 3% of the angels. उसके पास अब शैतान के पास 1/3 भाग स्वर्गदूतों का था, God only had one. लेकिन अब परमेश्वर के पास एक ही भाग बचा। God was in minority. परमेश्वर अब अल्पसंख्या में पाया गया। Can you imagine what he can do? क्या आप सोच सकते हैं इसके विषय में? So our speaker must be the Holy Ghost every time. इसलिए हमारा जो वक्ता है वो हर समय पवित्र आत्मा होना चाहिए। I never claimed or will ever claim that I can preach better. मैं कभी भी इस बात का दावा नहीं कर सकता, ना ही करूंगा कि मैं बेहतर प्रचार करना जानता हूं। No. नहीं, I'm still learning. मैं अभी भी सीख रहा हूं। And I'm not ashamed to say that I'm a student, Bible student yet. मुझे इस बात में कहने में कोई भी लज्जा नहीं कि मैं अभी भी इस बाइबल का विद्यार्थी हूँ। Praise the Lord. But what does the blood of Jesus Christ do? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमसे क्या करता है? Brother Branham said you get love. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि उससे आपको लव प्रेम मिलता है। You just got your arms around everybody. और आप फिर अपने बाहों को एक दूसरे पर रख देते हैं, And it's a basis of love. और फिर ये प्रेम का एक आधार बन जाता है। Through the blood. लहू के द्वारा ही, And the blood cleanses us. और उसका लहू हमें शुद्ध करता है। Do you see the meaning of fellowship now? और क्या आप देखेंगे कि जो सहभागिता के लिए क्या ही आधार है? Why we need fellowship? क्यों हमें सहभागिता की जरूरत है? Because we can learn from each other. क्योंकि हम फिर सहभागिता में आने से एक दूसरे से सीख सकते We हैं, could love each other. हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते We हैं, could grow with each other. और एक दूसरे के साथ मिलकर हम बढ़ सकते We can हैं, help each other. हम एक दूसरे की मदद कर We सकते can हैं, pray for each एक other. दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। That's why fellowship is needed. इसलिए सहभागिता जरूरी है। But when you educate yourself, लेकिन जब अपने आप को शिक्षित करते हैं,
didn't you come to church? आप कलीसिया क्यों नहीं आए? I was listening online. तो मैं ऑनलाइन सुन रहा था। No, the Bible doesn't approve that. बाइबल इस बात को सम्मति नहीं देती The है। Bible says, बाइबल बताती है, as you see that day approaching, जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, इसलिए एक साथ मिलना और उसे कम नहीं करना है। as you see that day, जैसे उस दिन को आते देखो, as the day is nearing, जैसे वो दिन नजदीक आ रहा we है, need more prayer meetings. हालेलुया, हमें और अधिक प्रार्थना सभा की जरूरत है। We need more prayer meetings. हमें और अधिक प्रार्थना सभाओं की जरूरत है And individual prayer. और व्यक्तिगत प्रार्थना की भी जरूरत We है। need to go on our knees. हमें अपने घुटनों में जाने की जरूरत है Pray more. और अधिक प्रार्थना करने की Pray जरूरत है। more. और अधिक प्रार्थना कीजिए So that we can talk with our God. ताकि आप परमेश्वर के साथ बातें कर सको। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Every family हर एक परिवार must have an altar built. और हर एक परिवार के अंदर परमेश्वर की एक वेदी होनी That's चाहिए। the place where God meets your family. वही जगह है जहाँ पर परमेश्वर उस परिवार के साथ मिलने आता है। Amen. That's why इसलिए your father and your mother आपके पिता और आपके माता get your children together और आप अपने बच्चों को एक साथ लीजिए and pray. और प्रार्थना कीजिए And God will meet you there. और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। That's the way to start your day. यही वो तरीका है जिसके जरिए आप अपने दिन को शुरुआत करें। Can you say amen? क्या आप आमीन कहेंगे इस बात के लिए? That's why इसलिए don't use this idiot much. और इसलिए इस इडियट जो मूर्ख है इसको ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। No. नहीं, Throw this off. इसे दूर फेंकिए। Sit with your dad. Sit with your mom. आपके माँ के साथ, अपने पिता के साथ बैठिए। Sit with your siblings. अपने भाई बहनों के साथ बैठिए Pray with them. और उनके साथ प्रार्थना कीजिए। Talk with your dad and mom. अपने पिता और माता के साथ बातें कीजिए। Spend time with them. उनके साथ कुछ वक्त बिताइए। Go out for a walk with them. उनके साथ थोड़ा सा चलिए। And you father mothers, और आप जो माता पिता हैं, you take your children close to your heart. आप अपने बच्चों को अपने हृदय के नजदीक रखिए। Speak to them. उनके साथ बातें कीजिए। Play with them. हालेलुया। See what they will play with them. और देखिए कि आप किस प्रकार के उनके साथ खेल सकते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। See what they need. देखिए कि उनको क्या चीज की जरूरत है। Amen. Can you say amen? क्या आप आमीन कहेंगे? If you don't play, अगर आप नहीं खेलेंगे they'll find somebody to play. तो उनको कोई ना कोई मिल जाएगा खेलने के लिए। Don't cry afterwards then. फिर बाद में मत रोइए। राइट, You're not at home. कि तुम घर पे नहीं हो You're not paying attention on the studies. और आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे You हो, don't come to church. आप कलीसिया में नहीं आते You हो, don't pray. आप प्रार्थना नहीं You don't करते read your हो, आप Bible. बाइबल नहीं पढ़ते हो। It's not their mistake. It's your उनकी mistake. गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। Amen. Think about that. It's 10 after 9. Is it okay? Few more minutes? 10 मिनट हो गए, थोड़ा सा और समय चलिए। Yes. Let the church tell me how much time I can preach. कलीसिया बताए कि मैं कितना और प्रचार कर सकता हूँ। हाँ? पास्टरों को ऐसे ही लगता है। मुझे भी लग रहा है कि मैं और प्रीच कर। हाँ? Is it okay? क्या ये ठीक है, मैं और थोड़ा प्रचार करूँ? How much time? कितना समय लूँ? बहनों में से कोई बताए कितना और समय प्रचार करें? Tell me please. बताइए 10 कितना? minutes? 20 minutes? 10 मिनट, 20 मिनट, Half an hour? आधा घंटा? 15 minutes? हाँ? किसको? 10 मिनट को, 15 मिनट को, 20 मिनट को, आधा घंटे को, 1 घंटे को? Oh, God bless you, sister. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। We'll just wind up as soon as we can. जितना जल्द हो सके मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। Now, remember that point. अब इस पॉइंट को याद रखिए। With much worldly knowledge and wisdom, और इस संसार के भौतिक ज्ञान और बुद्धि के जरिए what we get complexes. और इससे हमें क्या मिलता है? इससे सिर्फ भावनाएं, गलत भावनाएं आती है That takes away us from our loved ones. और हमारे प्रियजनों से वो हमें अलग करता है। How many sons your daughters have told you? Any times your son or daughter told you? और कई बार कितने लोग हैं जहां पर आपके बेटे और बेटी ने आपसे कुछ बताया होगा You don't know. कि आपको नहीं पता? What do you know? कि तुम्हें क्या पता है? What do you know when you're speaking like this? कि तुम कैसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें क्या पता है? Right? आपके बेटे और बेटी ने कई बार ऐसा कहा होगा। बराबर? हाँ? क्या मालूम है मम्मी तेरे को? क्या मालूम है तेरे को? हाँ? तो क्या बात कर रही तेरे को मालूम है? तू क्या बात कर रही? डैडी आपको क्या मालूम? अरे पगले, उनको कुछ नहीं मालूम, उसके लिए वो लोगों ने तुझे जन्म दिया,
उनको कुछ नहीं मालूम। उसके लिए तेरे माँ ने 9 महीना पाला और जन्म दिया, तेरे को दूध पिलाया, तेरे को धोया धाया। तू जब रो रहा था उसको मालूम है क्यों रो रही है, तो उसने अपना दूध पिलाया, तेरे को खाना खिलाया, तेरे को नीलाया। तू टट्टी गया तो तेरा साफ सफाई किया। समझ में? उनको कुछ नहीं मालूम, उसके लिए ये लोगों ने सब कुछ किया है। फिर उसके बाद अरे मैं तो अनपढ़ गवाह हूं, मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा स्कूल जाना चाहिए। भाई बोल रहे थे दोपहर को, मेरा तो ऐसा हुआ, लेकिन मेरा बेटा वो पढ़ना चाहिए, वो मैसेज को समझना चाहिए, वो बाइबल को समझना चाहिए। और उनको पढ़ाया, आज उनको ये पोजीशन में खड़ा रखा। उनको कुछ नहीं मालूम है। आज तुम बड़ा हो गया और तुम बोलता है क्या मालूम है डैडी आपको, मम्मी आपको क्या मालूम है, क्या बात कर रहे हैं आप। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स डस। यही चीज जो भावनाएं जो है ये बुद्धि और ज्ञान दिस इज द प्रॉब्लम दैट कम्स विद कॉम्प्लेक्स। आज ये भावना के जरिए ये समस्या उत्पन्न होती है। कितना बार बोला था मम्मी को, बराबर है नहीं? मम्मी क्या मालूम है तेरे को? अरे मम्मी डैडी को कुछ मालूम नहीं, उसके लिए तो तू इतना बड़ा हुआ नहीं? Am I right? So इसलिए don't get that kind of education. इसलिए इस प्रकार का ज्ञान मत हासिल कीजिए। No, नहीं, because that will create a complex. क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान आपके अंदर गलत भावना ही That will break your relationship. वो आपके संबंधों को खराब It will करेगा, break your friendship. आपकी जो मित्रता है उसे खराब It करेगा will break you, destroy your fellowship. और आपकी संगति को खराब कर देगा। उसके लिए कोई आता यहां से तो ये देख के भाग जाता है, right? But the blood of Jesus Christ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू it gives you love. Love covers multitude of sin. और प्रेम जो है बहुत ही गुनाहों को ढाक देता है। Love is patient. और प्रेम जो है धीरजबंद होता It है। is not selfish. वो स्वार्थ नहीं करता, स्वार्थी नहीं होता। Love is patient. प्रेम जो है धीरजबंद होता है। 1 Corinthians 13. You पहला know, कोरिन्थियर अध्याय। love. प्रेम, हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। But how you can have love? प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा? Through the blood of Jesus Christ. केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Just go with it further. आमीन। आइए हम थोड़ा और आगे Now बढ़ते हैं। fellowship comes by love. और संग सहभागिता केवल प्रेम के द्वारा ही आती है। And love requires fellowship. और संगति के लिए भी प्रेम की जरूरत है। If you love your wife, यदि आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं you've just got to get with her and talk with her. तो आप उसके साथ चलते रहेंगे, उससे बातें If करेंगे। you love your friend, यदि आप अपने मित्र से प्रेम करते you हैं have got to get with him and talk with तो him. आप उसके साथ चलेंगे और उससे बातें करेंगे। If you love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, hallelujah, हालेलुया। if you love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं there's got to be a basis for fellowship. तो आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वहां पर संगति के लिए एक आधार होना चाहिए। Without that basis, और हम उस आधार को जानते हैं, you cannot have complete fellowship आप तब तक संपूर्ण संगति नहीं रख सकते। and livelihood without these agreements. इन सम्मति के बगैर संपूर्ण संगति परमेश्वर के साथ आप नहीं रख सकते। That's why इसलिए for the Christian fellowship, और मसीह सहभागिता के लिए there is a basis made by Almighty God. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए एक आधार बनाया That's है। why He shed His blood. इसलिए उसने अपना लहू बहाया। Without agreement, you cannot marry, बिना सहमति के आप शादी भी नहीं कर सकते। because agreement is based upon a vow. एग्रीमेंट Is a vow. और अब जो सम्मति है उसके आधार पर ही शादी होती है। You cannot have fellowship with God without coming to God's agreement. आप तब तक सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर के साथ आपकी सहमति न हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति We हो। have to make agreement with our Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हमारी सम्मति होनी And that चाहिए is His agreement. और ये उसकी सम्मति है। And that's the basic of this fellowship. और यही सबसे मूलभूत बात है सहभागिता के लिए। And what is God's agreement? और परमेश्वर की सम्मति क्या है? That's the blood. ये उसका लहू है। The blood only. केवल उसका लहू। It's been God's way from the beginning. ये शुरू से ही ये परमेश्वर का एक मार्ग और तरीका था And it will be till the end. और ये अंत तक यही रहेगा। Only
fellowship through the blood. एक ही तरीका जिसके द्वारा हम संगति कर सकते हैं वो है लहू के द्वारा। If there is a true fellowship, अगर एक सच्ची सहभागिता है, God is love, और परमेश्वर प्रेम है, and love demands fellowship. और प्रेम संगति की मांग करता है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। And fellowship was broken between God and man. और जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संगति टूट गई थी, There had to be some sort of an agreement. तो वहां पर कुछ तो सम्मति की जरूरत थी, And God made that और arrangement परमेश्वर ने उसका अरेंजमेंट किया to restore again that कि fellowship. वो जो खो गई संगति है उसको फिर से अपने मूल स्थान में ला सके। The lost fellowship. वो जो संगति खो गई थी, And God formed the plan. और परमेश्वर को योजना मिली, And it was through the blood और वो एक लहू के द्वारा थी, of an innocent victim और एक मासूम लहू के द्वारा, that God restored man back to fellowship with him again. जिसके जरिए परमेश्वर ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में टूटी हुई संगति को फिर से रिस्टोर किया। Oh, the prophet of God, there has been many substitutes. और भविष्यवक्ता कहते हैं कि बहुत से ऐसे विकल्प जरूर थे। Adam tried it. आदम ने इसका कोशिश की, Denominations are trying it. संस्थागत कलीसियाओं ने कोशिश की, They're being educated people. उनको लगता था कि लोगों को शिक्षित करने के द्वारा संगति फिर से लाई जा सकती है। Christian science have tried with different forms. और मसीह विज्ञान के जरिए बहुत से अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए। Remember, there is nothing that could bring man to in fellowship with God again. और याद रखिए कि मनुष्य को परमेश्वर के संगति में लाने के लिए और कोई दूसरी बात नहीं है Fellowship with his maker. जो कि उसके रचयिता के साथ सबक संगति कर सके। There is only one way. एक ही तरीका है, The blood of his son. जो कि उसके पुत्र का लहू है, Jesus Christ. यीशु मसीह। It's the only appropriation God has is his blood. यही एकमात्र जो परमेश्वर ने ठहरा हुई चीज है जो कि उसका लहू है। The innocent victim died for a guilty person. और एक मासूम जो है हमारे लिए मरा, हम जो गुनहगार थे उसके लिए, To bring Adam back again. ताकि आदम को फिर से ला सके, Covered by his blood. जो कि उसके लहू से ढका हुआ That था, Adam could stand in the presence of God and worship again. जब ताकि आदम फिर से उसकी उपस्थिति में खड़े हुए उसकी आराधना कर सके। Oh, I love that. और मैं इससे प्रेम कर सकता There's something about it. There's something about it. उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात है। When you speak of blood, जब आप लहू के बारे में बात करते हैं, blood has life. लहू में जीवन है। Without the shedding of blood, there is no remission of sin. लहू के बगैर पापों की क्षमा नहीं है। You can have everything in the world. आपके पास संसार की हर एक चीजें हो सकती है, You can have any kind of thing that you wish to. जो आपकी मर्जी वो सारी हर चीज आप उसे ले सकते हैं। Any object of worship. कोई भी आराधना के लिए एक वस्तु बना सकते हैं, Any creed to live by. और कोई भी सिद्धांत जिसके जरिए आप जी रहे हैं, But you cannot come in fellowship with God. लेकिन उन सब चीजों के जरिए आप परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। Talking about divine fellowship with God. आप परमेश्वर के साद दिव्य संगति की बात कर रहे हैं, Until first you come under the blood. जब तक कि आप पहले उस लहू के तले नहीं आते। God's ordained and only holy way provided way for human beings. और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक ही तरीका जो ठहरा कर रखा है, जो पवित्र रहा हुआ है, उसका लहू। Even today it's the same plan. आज भी वही योजना है, It will be forever. ये हमेशा के लिए ऐसा ही है। No other plan. कोई और योजना नहीं The है, truth of love of the Lord Jesus Christ. लेकिन एक ही जो कि परमेश्वर मसीह के लहू के द्वारा। That's why God came down. He इसलिए परमेश्वर मसीह नीचे उतरा है, died on the earth, died and dead in Christ. और वहां पर हमारे लिए मरे, And he was buried. और उन्हें गाड़ा गया, That's how he could clean his church. और उसके जरिए हम उस लहू के द्वारा वो कलीसिया को शुद्ध कर सकता है, In order to get into it for fellowship. जिसके जरिए हम उस लहू के द्वारा उसके साथ सहभागिता कर सके। God loves fellowship. परमेश्वर सहभागिता से प्रेम करता है। That's what man was made at first time for. इसलिए पहली बार मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो संगति करे। God used to dwell with cherubims. परमेश्वर करूबों में निवास करता था, Now और अब he wants to dwell in our heart. हमारे हृदय में निवास करना He चाहता है। shed his blood. उसने अपना लहू बहाया, He washed our sin. उसने हमारे पापों को धोया, Redeemed us. हमें छुटकारा दिया, So that he could come into us ताकि वो हमारे अंदर आ सके and fellowship with us. और हमारे साथ संगति कर सके। That's why he made us. इसलिए उसने हमें बनाया। I got some more things that I could talk but I'm looking at the time. मेरे पास बहुत सी चीजें थी जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं समय को देख रहा हूँ। But God bless you. लेकिन प्रभु आपको आशीष दे। I'd like to say one more time, I love you all. और फिर से एक बार मैं कह सकता हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। There is a tomorrow. हालेलुया। लेकिन कल, If there is a tomorrow, यदि कल होगा, then we'll meet tomorrow again. तो हम फिर से कल मिलेंगे। You pray for me. आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। I'm a little bit exhausting.
मैं बहुत थोड़ा थका हुआ हूँ because too much traveling and too much preaching. और बहुत ज्यादा प्रचार और बहुत ज्यादा यात्राएं हुई है And from 17 again I will be preaching और 17 से मैं फिर प्रचार करने वाला हूँ every day हर एक दिन until 26th. 26 तारीख तक And there are 3 days I have to preach 2 times. और 3 दिन तो दो बार मुझे प्रचार It's करना a lot of preaching and a lot of traveling. बहुत सा प्रचार और बहुत सा यात्रा You है pray for me. इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें Thank you. God bless you. धन्यवाद और प्रभु आपका I turn the service to the man of God. और प्रभु के जन के पास मैं फिर से इस सभा को देता हूँ Thank you. Amen. Bless you. Bless you. God bless you. God bless you, my brother. Sit down. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग आशीषित हुए? Amen. हालेलुया। सब कहाँ देखना चाहते हैं? Hallelujah. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सच बात है, परमेश्वर की सहभागिता के लिए जो भी परमेश्वर ने भाई के मुंह से वचन की शुरुआत की, मुझे याद आया कि प्रॉफिट कहता है कि प्रभु की देह बीमार है, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। Right. और कलीसिया प्रभु के देह है। Amen. हम बहुत डीप में से सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मगर आज कलीसिया की जरूरत है कि प्रभु की सहभागिता के लिए सब लोग घर से आग लेकर आ रहे हैं। और आज की जरूरत ये परमेश्वर ने आज प्रभु के दास के द्वारा हमें बताई है। Amen. और हम Hallelujah. पास्टर साहब मेरे प्रभु आपको बहुत आशीष। Amen. God bless you. पवित्र आत्मा के जरिए से आज हमारे हृदय में जो चाहिए, हमें जो चाहिए प्रभु में बढ़ने के लिए, उस चीज को परमेश्वर ने उनके दास के द्वारा यहाँ पर प्रचार किया। आमीन। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं तो हम भी प्राप्त करेंगे और विशेष करके हमारे बीच में तो पास्टर एंड्रू है और ज्यादा समय बितावे आखिर प्रार्थना उनके द्वारा मैं करना चाहता हूँ और उनको आगे बुलाता हूँ ताकि वो प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आज हम लोग दोबारा वापस अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं। Hallelujah. आप खड़े हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रह करने का पिता प्रभु, आपको हम कितना भी धन्यवाद देगा हमारे जीवन में कम है, क्योंकि प्रभु उस ज्योति को आपने हमारे मध्य में भेजा ताकि हमारे जीवन से वो अंधकार निकल जाए। और खुदावन यदि उस ज्योति के साथ हम अपनी संगति को बनाए तो खुदावन हमारे अंदर कभी भी वो अंधकार नहीं आ सकता है। सो हमसे यही अनुरोध करते हैं क्योंकि आज जो हम ज्योति के संतान कहलाते हैं, इस ज्योति को हम हर एक दुनिया के कोने कोने में ले जाए और इस ज्योति को खुदा प्रभु हम फैलाए प्रभु। और खुदावन हमारे बीच में जितने लोग जवान हैं उन चलने वाले तो हमें बनाता हूँ। जब हम चलेंगे आपके साथ तो खुदावन हम जरूर जय को पाएंगे। तो खुदावन इस छोटी सभा को हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावन इस कलीसिया का पासवान पास्टर प्रभुदास तांबे के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन ने इस मुंबई शहर में आपके दास को अपने आप पे खड़ा किया है, विशेष करके इस सच्चाई के लिए और संदेश के लिए। खुदावन आप आपके दास को बहुत ऐसे आशीष कर, उनके सेवा का और बड़ा खुदा प्रभु ये छोटी सी झूठ को उनको दिया है, ये छोटी नहीं बल्कि ऐसा झूठ बने ताकि खुदावन इस झूठ में से अनेक तमाम और खुदावन प्रभु बड़े बड़े खुदावन प्रभु आपके सेवक निकल पाए। वही बरकत को, वही आशीष को इस खुदावन कलीसिया में रखने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यही मेरी आपसे विनती है और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। साथ साथ कल वापस दोबारा
हम लोग आने वाले हैं वही संदेश को सुनने के लिए। आपका दास को अभिषेक कीजिए ताकि और डबल पोर्शन के साथ, वो दुगुना समझ के साथ वो खुदा यहाँ पर आए और आपका उत्तम वचन को प्रसार करें जो आज हमारे लिए आवश्यक है। वो भोजन को आपने खिलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आसमान से उतरा हुआ मन्ना, आसमान से उतरा हुआ जीवन का रोटी वो और कोई नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। उसी रोटी को खाकर आत्मिक हम बल को पाकर खुदावन आगे बढ़ने में हमारी मदद और सहायता करें। सारी महिमा सारी गौरव आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु उसके प्यारे और मीठे नाम से माता सुना कबूल करा। आमीन। तो आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोग आशीषित हुए और जो सहभागिता के बारे में जो सुना है, तो कल कमेटी के लिए आप, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे और जो भी है आपको लगता है कि वो भी प्रभु के साथ सहभागिता करें, तो उनके लिए आए और समय पर आइए ताकि प्रभु का वचन आप सुने। मैं विश्वास करता हूँ आज से भी बढ़कर प्रभु कल और आशीषित करेगा। लास्ट पोस्ट गाकर हम सब आइए हम सभी इस सुंदर संदेश के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। क्या हम इंग्लिश में स्टेज पे गाएंगे? I love him because he first loved me। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस संदेश की सराहना में हम प्रभु को धन्यवाद के रूप में इस गीत को गाएंगे। I love him, I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary Street। और एक बार हम कहेंगे I love him, I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary Street। आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर की कृपा और प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ में आज से लेकर प्रभु का आगमन तक हमेशा के लिए बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको आशीष देता हूँ। आमीन। मुझे लगता है कि भाई हमारे बीच में जेमू है, कुछ चाय का बंदोबस्त करने के लिए वो सोच रहे थे, तो शायद गए लाने के लिए।